Good morning to everyone. So today we will start with trend analysis. What do you mean by trend analysis? Trend statement. You call it as trend statement also. जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं the trend the trend statement, the trend analysis refers to making comparison in the financial statement. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? बैलेंस शीट और रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट, वहां पे हम कंपैरिजन करते हैं. refers to making comparison in the financial statement within कंपैरिजन के लिए कितना ईयर चाहिए? स्टेटमेंट मेकिंग कंपैरिजन इन द स्टेटमेंट for more than 2 years. मतलब हम कंपेयर करते हैं 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स में. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपैरिजन करते. वी डू द कंपैरिजन फॉर मोर देन 2 years. The first year, the year 1 or the first year is referred as, one minute, is referred as the base year. पहले ईयर को हम क्या, ईयर 1 को हम क्या मानते हैं? बेस ईयर मानते हैं. एंड कंपेयर द फिगर्स of all the year, figures of all the other years with the base year, with those of the base year. हम बेस ईयर के साथ बाकी ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं. नाउ ये ट्रेंड्स एनालिसिस क्यों यूजफुल है? क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस से हमें पता चलता है how is the changes, whether there is increase in the trend, whether the fixed asset have increased, whether the net profit have increased, whether the gross profit have decreased. हमें समझ में आता है what changes are there. and हम लोग जब ये हम ट्रेंड परसेंटेज निकालते हैं, we calculate the trend percentage. and trend percentage normally देखो during presentation management in front of the management, जब managers management के सामने presentation दे रहे, that time to remember the figures, because the figures are very big, they may be in crores, so or more than that. To remember the figures is not easy, but to remember the percentage, that year 2019 में the gross profit was 10%, and in the year 2020 it has increased to 20%. so percentage में ध्यान रखना easy है as compared to the amount. So trend percentage is useful to make presentation in front of the management, to remember the percentage and give the presentation whether there is an increase or there is a decrease in the various items of the financial statement. So let us see the trend percentage. The trend percentage is the base year amount. I will write current year amount
current year amount divide by base year amount into 100. So we have to remember this percentage, sorry, this formula to calculate the trend percentage. मतलब हम क्या जितना भी जो भी ईयर का जो भी अमाउंट का हमें परसेंटेज निकालना है उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर के अमाउंट से, विच इज द बेस ईयर. बेस ईयर इज द फर्स्ट ईयर. With that we will be making the comparison. Now to understand in the better way, let us solve the first problem which is there in front of us. Mrs. Anurag Limited, carrying on business, furnished their position as on March 31st March 2015, 2016 and 2017. What did I say? Tell you ट्रेंड परसेंटेज मतलब मोर देन 2 years का कंपैरिजन. मोर देन 2 years मतलब 2 से ज्यादा साल का कंपैरिजन. तो वो 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, बट मोर देन 2 years. बट इन द क्वेश्चन it will never come more than 3 to 5 years. ट्रेंड मतलब 3 to 5 years ही मैक्सिमम आएगा, उससे ज्यादा years will not be there. Is my screen visible to everyone? See, 31st March 2015, 2015, 16, 17. So how many years have been given? 3 years information has been given. So what did I told you? कि more than 2 years. मोर देन 2 years का इंफॉर्मेशन रहेगा. वो तो 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, बट मोर देन 2 years. So now let us solve this. Let us prepare the trend balance sheet. Let us prepare the trend balance sheet which is given in the question. So they have given asset, but पहले तो liability आता है, but they have given asset of 3 years. Fixed asset है, investment है, current asset है, and liability में there is share capital which is owned fund, there is debenture which is loan fund, and there is liability for expenses क्योंकि short term liability है जिसको हम बोलते हैं current liability. So इसका हमें क्या करना है? ट्रेंड परसेंटेज निकालना है. देयर आर 3 years given, 2015, 16 and 17. टेल मी सबसे पहला ईयर कौन सा है? 2015, 16 and 17 में which will be the base year, which is the very first year in 2015, 16 and 17, which is the very first year 2015, 16 and 17 में the very first year is 2015. तो 2015 को हम बेस ईयर लेंगे, 2015 को हम बेस ईयर लेंगे. विद 2015 वी विल कंपेयर द अदर ईयर्स परफॉर्मेंस. तो 2015 से हम बाकी ईयर्स का कंपैरिजन करेंगे. We will compare the figures of other years with the figures of 2015 because 2015 is the base year. So now let us prepare the vertical trend balance sheet. Vertical trend balance sheet. What is the period? Just इतना ही लिखेंगे because more than 1 year is there. As on 31st March. But year हम लिख नहीं सकते because 3 years information is there. So now I will show you how to prepare the trend percentage. तो पहला ईयर पहला रहेगा particulars. फिर 3 अमाउंट दिया है, जितना ईयर का अमाउंट है उतना ईयर का परसेंटेज. सो दिस वे द क्वेश्चन विल बी. द फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स. First one is particulars. Then which are the years given? 2015, 2016, 2017 and
1 मिनट, यहाँ पे ट्रेंड परसेंटेज, ट्रेंड परसेंटेज, यहाँ पे भी कौन सा 3 इयर्स का परसेंटेज निकालना है, 2015, 2016 and 2017. Now what I will do, I will merge these cells. When we are drawing in the board, blackboard, we can do it anyway, but when we are doing in the computer, it requires some action. So here the column is ready. First one is particular, फिर 2015, 2016, 2017, फिर वो 3 years का हमें ट्रेंड परसेंटेज चाहिए. Now, how does the balance sheet start with sources of funds? Sources of funds. Sources of fund में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, what do we write? ओन्ड फंड ना, एंड ओन्ड फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओन्ड फंड में क्या है? ओन्ड फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड माइनस फिक्टिशियस असेट. बट यहाँ पे ओन्ड फंड में ओनली वन थिंग इज गिवन, एंड दैट इज व्हाट? शेयर कैपिटल. Only one thing is given, share capital. Share capital. तो शेयर कैपिटल क्या दिया है तीनों ईयर्स का? लेट अस राइट डाउन. शेयर कैपिटल is 33,000, 31,350 and 41,000. ट्रेंड परसेंटेज बाद में निकालते हैं. फिर एक और चीज आता है, दैट इज व्हाट? दैट इज नोन एज लोन फंड. एंड लोन फंड में क्या दिया है क्वेश्चन में? लोन फंड में दिया है डिबेंचर्स. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स गिवन? 2015 27,000, 2016 28,350 and 2017 it is 9,500. नाउ ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल सोर्सेस. टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, या तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं. नाउ ऐड बोथ ऑफ देम, दोनों को ऐड करो, कितना होता है? 33 and 27. It becomes how much? Is it correct? It becomes 60,000. and 31,350 and 28,350 को ऐड करो, 59,700 and 41,000 and 9,500 will be 5,500. Very good. Now the next one is application of funds. Application of funds. तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता है सबसे पहले फिक्स असेट. सो फिक्स असेट इज गिवन इन द क्वेश्चन. फिक्स असेट इज गिवन. हाउ मच इज फिक्स असेट? 30,000. सेकेंड ईयर का 25,500 एंड थर्ड ईयर का 43,800. आफ्टर फिक्स असेट बी इज इन्वेस्टमेंट. बी में लिखते हैं investment. So investment also is given in the question. Investment is 13,000. Second year also 13,000 and third year it is 18,400. इसके बाद C is
वर्किंग कैपिटल, सी जो है उसको बोलते हैं डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है? करंट असेट लेस बी करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे करंट असेट में क्या दिया हुआ है? करंट असेट कितना दिया हुआ है? 27,000 करंट असेट इज गिवन 27,000 33,200। तो करंट असेट गिवन इज 27,000 33,200 and third year's current asset is 18,900. It is 18,900 and current liability में क्या दिया है? Expenses, liability for expenses, that is current liability 10,000 12,000 and last में it is 30,600 30,600। तो ये तो माइनस करते हैं, करंट लाइबिलिटी लेस करते हैं, तो वी विल शो इट इन ब्रैकेट रेफरिंग इट टू एज अ नेगेटिव फिगर, क्योंकि लेस करना है तो ब्रैकेट में दिखाएंगे। नाउ वी वांट, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे मिलेगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो जल्दी से 27,000 में से 10,000 माइनस करो, यू विल गेट 17,000। 33,200 में से 12,000 माइनस करो, हाउ मच यू विल गेट? 21,200, 21,200 करेक्ट। एंड 18,900 में से 30,600 माइनस करो, 30,600। So how much you will get? You will get in the bracket, because देखो नेगेटिव फिगर इज बिगर, 3600 इज बिगर कंपेयर टू 18900, सो यू विल गेट अ नेगेटिव फिगर दैट इज 11,700। दिस इज अ नेगेटिव फिगर क्योंकि माइनस अमाउंट ज्यादा है। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम वी विल प्रिपेयर द टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड कैसे मिलेगा? ए 30,000 फिक्स एसेट, बी 13,000 इन्वेस्टमेंट, सी वर्किंग कैपिटल 17,000, यू विल गेट 60,000। किस किस को ऐड किया? ए प्लस बी प्लस सी। ए इज फिक्स एसेट, बी इज इन्वेस्टमेंट एंड सी इज वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके जो वर्किंग कैपिटल आया 30,000, 13,000, 17,000 इज इक्वल टू 60,000। Now 25,500 plus 13,000 plus 21,200 we get 59,700। फिर लास्ट वाला 48,300 plus 18,400 minus 11,700 you will get 5,500। मतलब हमारा बैलेंस शीट हो गया। Balance sheet is done. Now what is very important is the trend percentage. अब trend percentage में मुझे बताओ which one is the base year? 2015, 2016 and 2017 में which one is the base year? Which is the very first year? 2015। तो 2015 बेस ईयर के सारे परसेंटेज को 100 लिखो। बेस ईयर के परसेंटेज को क्या लिखना है? 100 लिखना है। What is the first thing we will consider? that base year का परसेंटेज इज 100। बेस ईयर के परसेंटेज को क्या मानना है? बेस ईयर के परसेंटेज को मानना है 100। दिस इज क्लियर?
हमेशा ट्रेंड परसेंटेज में जो सबसे पहला ईयर होता है उसको वी कंसिडर द बेस ईयर एंड उसके परसेंटेज को वी कंसिडर एज 100, उसके परसेंटेज को वी कंसिडर एज 100, दैट इज 100. नाउ आई हैव गिवन यू द परसेंटेज बेस ट्रेंड परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया है. करंट ईयर जिस भी ईयर का बेस परसेंटेज निकालना है उसको डिवाइड बाय बेस ईयर का अमाउंट इनटू 100. मतलब हम क्या मानते हैं तुमको यहाँ पे मैं बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट. ये 33,000 तो 100 है, तो 31,350 ये कितना परसेंटेज होगा. मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 33,000 अगर 100 है तो 31,350 कितना परसेंटेज है. हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कैसा रहेगा. हम लोग क्या करेंगे 31,350 इंटू 100 डिवाइड बाई 33,000. मतलब हम क्या कर रहे हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हाउ मच डिड यू गेट 95. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट ये जो 2016 का परसेंटेज है इट इज 95. अभी ये मैंने तुम लोग को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बताया. फॉर्मूला क्या है बेस ईयर का अमाउंट, सॉरी बेस ईयर का अमाउंट है 33,000. तो करंट ईयर अमाउंट मुझे ना 2017 का ये जो 41,000 है वो कितना परसेंटेज है वो फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे 41,000 divide by base year amount is 33,000 into 100. 41,000 divide by base year amount that is 33,000 into 100. 41,000 divide by 33,000 into 100. Are you getting 124? Are you getting 124? मतलब 124.2 आ रहा है क्या. तो हम लोग लिखेंगे 124.2. 124.2 जैसे डेसिमल में आया तो डेसिमल के साथ लिखेंगे. यहाँ पे इन द टेक्स्ट बुक दे हैव रिटन या डेसिमल नहीं डाला बट हमें डेसिमल है तो डेसिमल के साथ डालना है. तो यहाँ पे नेक्स्ट वन इज ये 28,350 ये इसका परसेंटेज निकालना है. डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट. बेस ईयर अमाउंट इज 27,000. बेस ईयर अमाउंट इज 27,000 इनटू 27,000 इनटू 100 कितना आता है 105 आया सबको 105. इसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है. इट इज 9,500. कितना है 9,500 डिवाइड बाई 27,000 इंटू 100. डिवाइड बाई 27,000 इंटू 100 कितना आ रहा है 35.185 आ रहा है. तो मैंने उसको 19 कर दिया क्योंकि 8 के बाद 5 है तो एक डेसिमल इंक्रीज करेंगे. 8 विल बिकम 9. सेम वे नाउ 59,700 का निकालो. 59,700 का बेस ईयर अमाउंट 2015 का अमाउंट कितना है डिवाइड बाई 60,000 इन 200 हमें मिलेगा 99.5. डिड वी गेट 99.5. उसके बाद सी हाउ वी विल डू. 2017 का अमाउंट क्या है 50,500 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट. बेस ईयर अमाउंट इज 60,000 into 100. So we get 84.1666 हो जाएगा. तो 16 हो जाएगा 1784 पॉइंट. रिकरिंग है ना तो 6 मतलब मोर देन 5 तो एक डिजिट ज्यादा करेंगे. 6 विल बिकम 717. सेम वे नाउ फिक्स सेट का निकालो.
फिक्स सेट का निकालो 20, 25, 500, बेस ईयर का सारा परसेंटेज 100 है वो हमें पता है, तो 25, 500 डिवाइड बाई बेस ईयर अमाउंट इज 30,000 into 100 वी आर गेटिंग 85, करेक्ट। फिर उसके बाद 43,800 डिवाइड बाई 30,000 into 100 we are getting 14.6, सॉरी 146 आया क्या, 146, वी नो 14.6 नहीं 146 आया ना, वी गॉट 146। देखो ना 30,000 से ज्यादा है, मतलब 100 से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। In the first year fixed asset was 30,000, then fixed asset in the second year reduced from 30,000, in the third year it increased from 30,000, it became 43,800, मतलब more than 100% increase हुआ है। and in the now यहाँ देखो 13,000 डिवाइड बाय 13,000 into 100% आएगा, मतलब सेम है। इन्वेस्टमेंट इन द 2016 was same as 2015, बट इसके बाद 2017 में 18,400 डिवाइड बाय 13,000 into 100 कितना मिला, 141.54 मिला, 141.54। इसके बाद वी विल गो हियर 33,200 का परसेंट निकालो, 33,200 डिवाइड बाय 27,000 into 100, दिस बिकम्स 122.96, 122.96। एंड सेम वे 18,900 का भी परसेंटेज निकालो, 18,900 डिवाइड बाय 27,000, यस इट इज 70%। इसके बाद करंट लाइबिलिटी का टोटल निकालो, हाउ मच इट इज कमिंग, 12,000 डिवाइड बाय 10,000 into 100, it is how much, 120%, करेक्ट। फिर 3,600 का भी परसेंट निकालो, 3,600 डिवाइड बाय 10,000 into 100, it is 306, करेक्ट। फिर इसके बाद करंट लाइबिलिटी का करंट लाइबिलिटी हो गया ना, वर्किंग कैपिटल 21,200 डिवाइड बाय 17,000 into 100, how much you're getting, 124.71। सेम वे ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा 11,700 डिवाइड बाय 17,000 into 100, 68.82 राउंड ऑफ नहीं करेंगे, वी विल शो एज इट इज। तो 59,700 कितना है लास्ट में, 59,700 डिवाइड बाय 60,000 डिवाइड बाय 60,000 into 100, how much did we get, 99.5, and last वाला 5,500 divide by 60,000 into 100, it is 84.17. with this sum is done. Now let us prepare vertical, हमें क्या प्रिपेयर करना है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, इनकम को रेवेन्यू भी बोलते हैं, स्टेटमेंट वर्टिकल इनकम ट्रेंड स्टेटमेंट ना, वी वांट द ट्रेंड, 2 से ज्यादा साल कभी भी दिया है दैट बिकम्स ट्रेंड स्टेटमेंट। क्वेश्चन में बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट इनटू ट्रेंड स्टेटमेंट, सो हमें वर्टिकल इनकम ट्रेंड स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। एंड
कितना ईयर है 2016, 2017, 2018, 3 years are there. Tell me which is the base year, which is the base year, which is the base year from this 2016, 2017, 2018 में, which is the base year 2016 is the base year because it comes, it is the सबसे पहला year, सबसे जो पहला साल होता है previous year होता है, that is the base year. So 2017, 2018 and इसके बाद we want the trend percentage, we want the trend percentage. So I will merge it and I will write trend percentage. Trend percentage. So trend percentage. Which all year ka trend percentage we want? 2016, 2016, 2017 and 2018. So now one more thing I will have to do. ये सबको भी merge करना पड़ेगा. And ये particulars को भी so यहाँ पे yes. Now what we will do? Now what we will do? यहाँ पे it is already converted in the vertical form. So I will do one thing. I will copy this. Yes. So यहाँ पे this is correct. This one को correct करने के लिए now it will become correct. Yes. यहाँ पे तो ऑलरेडी इट इज इन द वर्टिकल फॉर्म, तो जो से वर्टिकल फॉर्म में ही है तो हमें सेम लिखना था. देखो नेट सेल्स है, नेट सेल्स में से माइनस करते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर हमें मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स को माइनस करते तो मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. मींस दिस इज ऑलरेडी इन द वर्टिकल फॉर्म. So we only have to do is calculate the trend percentage. We only in this sum have to calculate the trend percentage. सिर्फ trend percentage निकालना है. Understood everyone? We have to only prepare the trend statement in this question, trend percentage, because the format is ready-made, already given in the proper format in the question. प्रॉपर फॉर्मेट में दिया हुआ है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल हियर ट्रेंड परसेंटेज. क्या होता है इन द ट्रेंड परसेंटेज? बेस ईयर परसेंटेज इज ऑलवेज 100. तो बेस ईयर का परसेंटेज लिख लेते हैं. इट इज हाउ मच? इट इज 100. इसके बाद बाकी ईयर का परसेंटेज निकाल लेते हैं. Base year का percentage is 100. So next, how to find out the trend percentage of 2017 for net sales? Net sales divide by net sales divide by that is 3 lakh divide by 2 lakh into 100. 3 lakh divide by 2 lakh into 100 कितना मिला? 150 मिला. लास्ट ईयर का भी निकालो. 4 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है? 200 आ रहे. हर बार हमें क्या करना है? अमाउंट को बेस ईयर अमाउंट में डिवाइड करना है. जिस ईयर का भी हमें परसेंटेज चाहिए उस ईयर को डिवाइड करना है बेस ईयर के अमाउंट के साथ एंड मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ. सो हियर
80,000 का हमें निकालना है, तो 80,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 करो, व्हाट यू आर गेटिंग 133.33। एंड सेम वे 1 लाख को भी 60,000 से डिवाइड करो, 1 लाख डिवाइड बाय 60,000 into 100, what are we getting 166.67, 166.6766 है, तो इसको 67 कर दिया। सेम वे 2,20,000 डिवाइड बाय 1,40,000 इंटू 100 कितना मिल रहा है 157.14। एंड 3 लाख डिवाइड बाय 1,40,000 करो, 3 lakh divide by 1,40,000 into 100, we get 214.29, करेक्ट। इसके बाद 1 लाख को डिवाइड करो 40,000 से, 1 लाख डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 कितना मिला 250 मिला। फिर 1,60,000 को डिवाइड करो 40,000 से, कितना मिला 400 मिला। डिड यू गेट 400? नाउ नेक्स्ट वन 1,20,000 को डिवाइड करो 1 लाख से, कितना मिला 1,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख 120 मिला क्या 120। एंड ये कितना मिला 140। यहाँ पे तीनों 20,000 है, तो तीनों का परसेंटेज 100, ये भी 20 है, ये भी 20 है, दैट मीन्स 100 20,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 इज 100। इसके बाद 15,000 डिवाइड करो 10,000 से, 15,000 दिस इज नेगेटिव ना, तो हम इसे ब्रैकेट में दिखा देते, सारे ये नेगेटिव है। तो 15,000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100 इज 150। एंड सेम वे ये कितना रहेगा 200, करेक्ट, ये 200 आया। इसके बाद 1,25,000 को डिवाइड करो 1,10,000 इंटू 100 में, तो क्या आया 113.64 आया। सेम वे 1,40,000 को भी 1,10,000 से करो, 1,40,000 डिवाइड बाय 1,10,000 इंटू 100, आई एम गेटिंग 127.27। इसके बाद अगेन इट इज इन ब्रैकेट, सो तीनों को ब्रैकेट में बताएंगे बिकॉज इट्स अ नेगेटिव अमाउंट। सो ब्रैकेट में कितना आएगा 55,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 कितना आया 137.5। डिड यू गेट दिस आंसर एवरीवन? इसके बाद 70,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 175। नाउ लास्ट वन तीनों 100 है because all the three is 70,000 net profit, so all the three will be 100. 70,000 divided by 70,000 into 100 is 100. With this we are done with the trend statement. Now what we will comparative statement. So what does comparative statement? The name itself says making comparison. So in comparatives, in this statement comparison is made in between the comparison is made in the financial
statement, in the financial statement between 2 years, मतलब कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 years। तो यहाँ हमेशा कंपैरिजन, ट्रेंड स्टेटमेंट में कंपैरिजन ही करते हैं, बट इट इज मोर देन 2 years। बट इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 years, मतलब हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो कंपैरिजन हम 2 years में करेंगे, और बिटवीन टू कंपनीज, और बिटवीन टू कंपनीज। तो यहाँ पे जब भी कंपेयर करेंगे तो दो अमाउंट का कॉलम रहेगा, दो से ज्यादा नहीं रह सकता। अगर दो से ज्यादा अमाउंट का कॉलम है then it becomes trend statement. So here always you will see that comparison is made between 2 years और 2 companies। उसको वो अमाउंट को 2 कंपनी बोल सकते हो या 2 ईयर बोल सकते हो, बट ध्यान में रखना कंपैरिजन इज मेड between, what you say, comparison is made between 2 years or 2 companies. Now let us, we will see whether there is an increase or there is a decrease in the financial statement. What is observed? It is observed whether there is a increase or decrease in the financial statement, and what is calculated, and the increase or decrease percentage is calculated. इंक्रीज और डिक्रीज मतलब क्या? इसका मतलब है इन शॉर्ट चेंज। इन शॉर्ट इंक्रीज होना, डिक्रीज होना मतलब क्या होना? चेंज होना। तो व्हाट वी डू हियर, द फर्स्ट ईयर इज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर। द विदिन द 2 years, 2 साल होते हैं, उसमें द फर्स्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर और द year 1, पहला साल, the first year 1 is considered as the base year, base year जो पहला साल होता है। अब 2019 and 2020 में, which is the first year, 2019 and 20 में, which is year 1, it is 2019। तो हम 2019 को बेस ईयर लेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट, चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज और चेंज परसेंटेज निकालते हम। इंक्रीज और डिक्रीज भी बोल सकते हैं, या इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स व्हाट? चेंज। Increase or decrease means change. The own fund has increased or the loan fund has decreased. Increase or decrease means what? There is a change. There is a change in the own fund. There is a change in the loan fund. Change है, तो change percentage कैसे निकालते हैं हम निकालते change amount, और you may say increase or decrease amount divide by base year amount into 100. What is the formula here? यहाँ पे फॉर्मूला है चेंज परसेंटेज निकालना है, मतलब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो परसेंटेज निकालना है। वो कैसे निकालते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट, मतलब चेंज अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट, विच इज द बेस ईयर। द फर्स्ट ईयर इज नोन एज द बेस ईयर into 100.
So now let us see how it is done. Let us understand this with the help of a sum. Let us understand this with the help of a sum. So यहाँ पे क्या दिया है, convert the following financial statement into comparative statement. Calculate, convert the following financial statement into comparative. तो सबसे पहले बैलेंस शीट दिया है एंड बैलेंस शीट में व्हाट इज गिवन, सोर्सेस ऑफ फंड, जिसमें ओन्ड फंड है, लोन फंड है, सोर्सेस ऑफ फंड है, फिर एप्लीकेशन में तीनों है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल. वी कैन सी that the balance sheet is already in the format, in the vertical format, as per the format, as per the format. See, what is the difference between trend statement and comparative statement? The only difference is trend statement में more than 2 years का information रहता है and comparative statement में it is only 2 years. Comparative statement में always it is comparison between 2 years. When we do comparison more than 2 years, it becomes trend statement. And when we do comparison between 2 years, it becomes comparative statement. Got the difference? Now, P&L account also is in the format. So, अब हम क्या करेंगे? We will prepare the comparative vertical comparative balance sheet and vertical comparative revenue statement. Vertical comparative balance sheet. Vertical comparative balance sheet. First we will find out. So compare, what we are now going to do, vertical comparative balance sheet. So let me draw the format and show you how the format of this one is. We require 1 minute, Control Z, 1 2 3 4 5. We require 5 columns. First one is particulars. For particulars. Second one is कौन से 2 years दिए, 2019 एंड 2020. इसके बाद हम लोग निकालेंगे ये जो है, इसको बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज. इसको बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज, या बोलेंगे चेंजेस, एब्सोल्यूट चेंजेस. सो यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे भी दिखा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट, इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट. एंड यहाँ पे बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज या चेंज बोल सकते हैं इन परसेंटेज. You may call it as change also, change in amount, change in percentage. Change मतलब क्या होता है, या तो increase हो सकता है या तो decrease हो सकता है. तो it is up to you how you call it. You can call it change in amount, change in percentage, or to be more specific, you can call it increase, decrease, increase or decrease in amount, increase or decrease in percentage. So now हमारे पास फॉर्मेट तो पहले से है, ये पूरा सम पहले से फॉर्मेट में है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस, so that everything, so that we need not write it again and again. So this is what, this is A and this one is B. तो कॉपी करने पे क्या हो गया, सब में ही आ गया. Total sources and this one is
application of fund, 1 minute. This one is तो इसको बोलेंगे ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है और ये है ओन्ड फंड है। जस्ट अमाउंट ठीक करती हूँ। ओके, जिसको इसको हम लोग ए बोल सकते हैं, इसको बी एंड इसको सी। Okay, done. So now this is in the proper format. Okay. Now how to solve this? Now we come to format to ready hai. Now how to solve this? How to solve this comparative statement? Let us see. सबसे पहले हमें चाहिए चेंज इन अमाउंट। तो मुझे बताओ 2019 में ओन फंड was 3 lakh, now it is 5 lakh. Is it a increase or is it a decrease? 3 lakh से शेयर कैपिटल 5 lakh हो गया। ओन्ड फंड 3 lakh से इट बिकेम 5 lakh। सो कितना चेंज इन अमाउंट है? हाउ मच इज द चेंज? इट इज 2 lakh। तो कभी भी इंक्रीज होगा तो ऐसे लिखेंगे दैट द चेंज इंक्रीज इज 2 lakh। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द इंक्रीज का परसेंटेज। वो कैसे निकालेंगे? चेंज इन अमाउंट, दैट इज इंक्रीज डिक्रीज इन अमाउंट, चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। बेस ईयर अमाउंट कितना है? 3 lakhs है। तो मुझे बताओ 2 lakh डिवाइड बाय 3 lakh, 2 lakh डिवाइड बाय 3 lakh into 100 कितना आ रहा है? हाउ मच आर यू गेटिंग? Are you getting 66.67? 2 lakh divide by 3 lakh into 100. तो 66.67 is the change. 66.67 is the change. 2 lakh मतलब चेंज। हम यहाँ पे क्या करते हैं? चेंज डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। चेंज मतलब कुछ भी चेंज हो सकता है। अमाउंट इंक्रीज होगा तो भी इट इज अ चेंज, अमाउंट डिक्रीज होगा तो भी इट इज अ चेंज। तो चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। बेस ईयर हमेशा पहले वाला ईयर होता है, प्रीवियस ईयर, फर्स्ट ईयर। तो इनटू 100 किया तो हमें ये परसेंटेज आ जाएगा। सेम वे ट्रेंड में हम ऐसा अमाउंट नहीं निकालते। ट्रेंड में हम इंक्रीज अमाउंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो नहीं निकालते। ट्रेंड में हम सिर्फ ट्रेंड परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पे वी टेक द चेंज इन अमाउंट ऑल्सो एंड फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप करते हैं, वहां पे सिर्फ एक ही स्टेप है इन द ट्रेंड। सो सेकेंड वन में टेल मी, इज इट अ इंक्रीज और अ डिक्रीज? In the second one, is it a increase or is it a decrease? जो लोन फंड है from 2 lakh it has become 1 lakh. From 2 lakh it has become 1 lakh. So it is a decrease. Decrease होगा, decrease of 1 lakh तो decrease होगा। तो हमेशा ब्रैकेट में दिखाना है। Pay attention, whenever it is a decrease we have to show in the bracket.
समझ में आया? whenever it is a decrease we have to show in the bracket. so हमें देख के पता चलेगा इंक्रीज है क्या डिक्रीज है. जो भी ब्रैकेट में दिया है तो समझ जाने का इट इज अ डिक्रीज, एंड विदाउट ब्रैकेट दिया है मतलब इट इज अ इंक्रीज. ब्रैकेट में मतलब डिक्रीज, विदाउट ब्रैकेट मतलब इट इज अ इंक्रीज. सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है, हमें समझने के लिए इंक्रीज होगा तो विदाउट ब्रैकेट, डिक्रीज होगा तो विद ब्रैकेट. नाउ इसका परसेंटेज निकालो कितना आ रहा है. 1 lakh divide by 2 lakh into 100. Are we getting 50%? हमें यहाँ पे आंसर आएगा 50%. 50 आंसर आएगा. 1 lakh divide by 2 lakh into 100. Are everyone getting the same answer? Now here, so total sources of fund कितना increase हुआ है या decrease हुआ है? Increase हुआ है ना, इंक्रीज हुआ. ये 50 सबको समझा कैसे आया? चेंज इन अमाउंट इज 1 lakh डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इज 2 lakh. 1 lakh डिवाइड बाय 2 lakh इंटू 100. नाउ नेक्स्ट वन देखो, 5 lakh से 6 lakh हो गया. इसी तरह इंक्रीज और इसी तरह डिक्रीज. इंक्रीज है. नाउ इसका परसेंटेज निकालो. 1 lakh डिवाइड बाय 5 lakh. 1 lakh डिवाइड बाय 5 lakh इंटू 100. Correct answer, it is 20. It is 20. Same way, now fixed set कितना increase हो गया या decrease हो गया? Increase हो गया क्या decrease हो गया? Increase हो गया 50,000. तो ये 50,000 का take down the percentage कितना increase हो गया? 50,000 divide by 3 lakh into 100. कितना इंक्रीज हो गया? व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज? 16.67. आर एवरीवन गेटिंग? नाउ इन्वेस्टमेंट में देयर इज नो चेंज. देयर इज नो चेंज, तो चेंज परसेंटेज भी नहीं आ सकता. तो मैंने डैश डैश डाल दिया बिकॉज इट इज सेम. कोई इंक्रीज नहीं है, कोई डिक्रीज नहीं है, देयर इज नो चेंज. तो मैंने डैश डैश डाल दिया बिकॉज कोई इंक्रीज भी नहीं हुआ तो इंक्रीज परसेंटेज भी नहीं होगा, कोई डिक्रीज नहीं हुआ तो कोई डिक्रीज परसेंटेज भी नहीं होगा. मीन्स इन शॉर्ट देयर इज नो चेंज, सो नो चेंज परसेंटेज. तो डैश डैश डाल दिया. अब वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? 50 से 1,50,000 से 1,50,000. देयर इज नो चेंज. नाउ टेल मी, ये वर्किंग कैपिटल का क्या हुआ है? 50 से इट हैज बिकम 1 lakh. देयर इज अ चेंज ऑफ 50,000. देयर इज अ चेंज, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 50,000. नाउ इंक्रीज का परसेंटेज निकालो. इंक्रीज का परसेंटेज 50,000 डिवाइड बाय 50,000 मतलब देयर इज अ 100% चेंज. 100% इंक्रीज हो गया. अब सेम वे लास्ट वन का निकालो. कितना इंक्रीज है? 1 लाख का. तो ये परसेंटेज कितना है? 20. विद दिस बैलेंस शीट इज ओवर. बट ये सम में हमें एक और चीज निकालने बोला है. ये सम में हमें एक और चीज निकालने बोला है. उसको बोलते हैं वर्टिकल कंपेरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट भी बोला है. वर्टिकल कंपेरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट. वर्टिकल कंपेरेटिव रेवेन्यू स्टेटमेंट इज ऑल्सो देयर. तो रेवेन्यू स्टेटमेंट के लिए सेम वे हम ऐसे ही कॉलम्स बनाएंगे. पर्टिकुलर 2 कॉलम अमाउंट के लिए और इंक्रीज डिक्रीज के लिए 2 कॉलम, एक अमाउंट के लिए एक परसेंटेज के लिए. So here particulars, फिर 2019 2020 and we want increase decrease. इसको चेंज भी लिखेंगे तो चलेगा. इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट एंड इंक्रीज डिक्रीज इन percentage. Done. Now what I will do, because ये तो ऑलरेडी फॉर्मेट में है, नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्मेट. तो मैं इसको
एक एक करके लिखने का नहीं है मुझे, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यस ना, 2019 एंड 2020 2 ईयर्स का इंफॉर्मेशन दिया है। सो दिस इज डन, फॉर्मेट आ गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, पहले तो वी विल हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ इंक्रीज और वेदर इट इज अ डिक्रीज। टेल मी, पहला वाला 5 लाख से 6 लाख हो गया, इट इज अ इंक्रीज ऑफ 1 लाख, करेक्ट। इसका परसेंटेज निकालो, कितना परसेंटेज है इंक्रीज परसेंट, 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 दैट इज 20। सेम वे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, एक जीरो इधर कम हो गया, हाँ क्या हो गया, 2 लाख से 3 लाख हो गया, 2 लाख से 3 लाख हो गया। तो व्हाट इज इट, इंक्रीज और डिक्रीज, इज इट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज ऑफ 1 लाख। ना इंक्रीज है 1 लाख का, तो इसका भी परसेंटेज निकालो कितना है, 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, 1 lakh divided by 2 lakh into 100. Now our gross profit there is no change, पहले भी 3 लाख था, अभी भी 3 लाख है, तो हम लोग कुछ नहीं लिख सकते ना, there is a no change in amount, no change in percentage. Now operating expenses from 1,50,000 it has become 50,000, मतलब कितने का decrease है, it is a 50,000 decrease. तो now tell me कि कितना परसेंटेज है, 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, sorry 50,000 divided by 1,50,000 into 100, there's 33.33% change. Now net profit before tax and after net profit before tax 1,50,000 से 2 लाख हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 50,000 का इंक्रीज ना, 1,50,000 से it increased to 2 lakh means 50,000, but without bracket the percentage is same, बट सेम डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी मुझे एक मिनट, हाँ यहाँ पे भी आई हैव टू शो इन ब्रैकेट बिकॉज परसेंटेज ऑल्सो आई हैव टू शो इन ब्रैकेट, हियर ऑल्सो पे अटेंशन, मैंने इधर ब्रैकेट में नहीं बताया, परसेंटेज को भी हमें ब्रैकेट में बताना है। जब डिक्रीज होता है तो डिक्रीज इन अमाउंट, डिक्रीज इन परसेंटेज, सो बोथ विल बी इन ब्रैकेट टू शो, इंक्रीज होगा तो विदाउट ब्रैकेट होता है, डिक्रीज होता है तो विद इन द ब्रैकेट होता है, टू शो द डिफरेंस। नाउ जस्ट टैक्स देखो, 75,000 से 1 लाख हो गया, सो इट इज 25,000 इंक्रीज। नाउ फाइंड आउट द परसेंटेज, कितना आया, 25,000 डिवाइड बाई 75,000 इंटू 100, इट इज 33.33। सेम वे हमारा जो लास्ट वन है इट इज ऑल्सो सेम, बिकॉज क्या हो गया, हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 75,000 से 1 लाख हो गया, तो इवन द परसेंटेज विल बी द सेम 33.33, मतलब 25,000 divide by 75,000 into 100. With this comparative is done. Yes, see here now the last one is common size statement. Common size statement, see in this type of question, इसमें टाइप कैसे पूरा सम तो नहीं आ सकता, एक छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज अगर नेट सेल in year 2019 was 5 lakh, in 2020 6 lakh, so how much is the change, how much is the change in amount, या how much is amount तो बहुत easy हो जाता है, how much is the change in percentage, change in percentage कितना रहेगा, तो उस हिसाब से एक एक का आ सकता है, पूरा सम कैनॉट कम, वन अमाउंट के साथ छोटा 1.5 मार्क्स के लिए एक एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर सेल्स इज दिस मच, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज दिस मच, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा सब छोटा छोटा क्वेश्चंस कैन कम, और फुल क्वेश्चन कैन नॉट कम, वन क्वेश्चन कैन कम, या तो कंपैरेटिव में या तो ट्रेंड में, ट्रेंड
ट्रेंड में तो 3 इयर्स का होता है, तो ट्रेंड में ऐसे 3 ईयर का परसेंटेज ऑप्शन में दिया रहेगा, तुमको करेक्ट परसेंटेज चूज करना है that way. So keep your calci and keep a notebook and pen with you so that तुम बुक में भी कभी 3 बार परसेंटेज निकालना लिख के कैल्सी में निकाल के बुक में लिखोगे और क्रॉस चेक करोगे इन द आंसर दैट वे. बट कैल्सी इज मस्ट, हाँ कैल्सी चाहिए अपने को. So यहाँ पे now we will come to the last one, that is the common size statement. Now what do you mean by common size? Common size में हम क्या करते हैं? See, normally it is very difficult in the financial statement to remember the amounts. In the financial statement to remember the amount is very difficult. तो हम लोग ऐसे ध्यान में रखे कि सेल्स 10 लाख था, एक्सपेंसेस 6,67,332 था, ग्रॉस प्रॉफिट इतना था, एक्सपेंसेस वाज सो मच. टू रिमेंबर ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी डू इन द कॉमन साइज स्टेटमेंट, हम क्या करते हैं, सारे आइटम्स इन द बैलेंस शीट and in the revenue statement is like, for example I will write in common size statement, in common size revenue statement, in common size revenue statement what we do, we convert in the common size revenue statement all the expenses and incomes, all the expenses and incomes are converted as the percentage of net sales. मतलब ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेल्स का कितना परसेंटेज है, ऑफिसर एडमिन एक्सपेंस सेल्स का कितना परसेंटेज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंटेज है. अब हमारे रेवेन्यू स्टेटमेंट में जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स है सबको हम लोग नेट सेल्स का परसेंटेज निकाले, मतलब नेट सेल्स का क्या परसेंटेज है वो फाइंड आउट करेंगे. वी विल कन्वर्ट ऑल द अमाउंट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इन द रेवेन्यू स्टेटमेंट एज द परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स, as the percentage of net sales. ध्यान में रखो नेट सेल्स किसका परसेंटेज, नेट सेल का. तो कैसे निकालते, इसमें हमें कॉमन साइज परसेंटेज निकालना होता है. तो कॉमन साइज रेवेन्यू परसेंटेज, कॉमन साइज रेवेन्यू परसेंटेज इज इक्वल टू स्पेसिफिक अमाउंट, जिसका भी हमें स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, वो इनकम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है. तो स्पेसिफिक एक्सपेंस और इनकम कोई भी अमाउंट रहने दो, डिवाइड बाय नेट सेल्स, डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. सो तो कॉमन साइज, कॉमन के आगे क्या आएगा, साइज आएगा. तो कॉमन साइज रेवेन्यू परसेंटेज कैसे निकालना है, रेवेन्यू स्टेटमेंट का परसेंटेज कैसे निकालना है, कोई भी एक्सपेंस रहने दो, कोई भी इनकम रहने दो, उसको नेट सेल से डिवाइड करना है और नेट सेल का जो भी आंसर आता है वो लिखना है. सेम वे हम व्हाट इज, हम इन कॉमन साइज बैलेंस शीट, in common size balance sheet, what we do, all the assets and liabilities are converted as the percentage of capital employed, of the percentage of capital employed. मतलब तुम लोग को पता है कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम रहता है,
टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोल सकते हैं, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड भी बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो वो तो हमेशा सेम होता है, तो उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सारे असेट्स को भी और सारे लाइबिलिटीज को भी। तो ये कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉमन साइज बैलेंस शीट परसेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट परसेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक असेट, मतलब वो कोई भी असेट रहने दो, कोई भी लाइबिलिटी होने दो, असेट या लाइबिलिटी कोई भी होने दो, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड into 100, into 100, capital employed into 100. So this is the formula for balance sheet. बैलेंस शीट में हम कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू स्टेटमेंट में हम नेट सेल्स से डिवाइड करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। सो नाउ लेट अस फाइंड आउट, नाउ लेट अस डू दिस सम, पहले रेवेन्यू स्टेटमेंट वाला सम करेंगे, फिर बैलेंस शीट वाला सम करेंगे। सो यहाँ पे लेट अस से वर्टिकल कॉमन साइज, vertical common size, what we say, this is what, revenue statement, vertical common size revenue statement, vertical common size revenue statement। तो यहाँ पे what we will insert, एक ही परसेंटेज के लिए एक कॉलम इंक्रीज करना है, तो पर्टिकुलर 2 column for amount and 1 column for common size percentage. So this way हमारा रहेगा particulars which is the 2 column for rupees and last column for common size परसेंटेज। हमें एग्जाम में पूरा सम तो नहीं आने वाला, एक एक क्वेश्चन आ सकता है, एक एक छोटा छोटा सा हिस्सा पूरे सम के। तो वर्टिकल कॉमन साइज रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31/12/2016 is given in the question. Now let us start our sum. तो यहाँ पे ये हमें थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा एक एक करके। तो ग्रॉस सेल्स कितना दिया है, ग्रॉस सेल्स दिया है 8,50,000, इससे लेस करेंगे, क्या लेस करना है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, रिटर्न्स, हाउ मच इज द रिटर्न्स, रिटर्न इज 50,000, रिटर्न इज 50,000। सो हमें नेट सेल्स कितना आएगा, नेट सेल्स इज माइनस करके 8 लाख। अभी हम कुछ भी कॉमन साइज परसेंटेज में नहीं लिख सकते, जो भी थर्ड कॉलम में वो सबको सेकेंड कॉलम में लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी कैनॉट राइट एनीथिंग इन कॉमन साइज परसेंटेज। वहां पे तो हमें कॉमन साइज परसेंटेज निकालना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस क्या दिया है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हाउ मच, ब्रैकेट में दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख, 3 लाख। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच, 8 लाख माइनस 3 लाख, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 5 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या लेस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 2 लाख। तो वी विल राइट हियर क्वेश्चन में इट इज गिवन 2 लाख। ये माइनस करने के बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, बाकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया, जो नहीं दिया वो नील है।
तो जो लास्ट में आएगा जो दिया है वही लिखेंगे. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख माइनस 2 लाख, इट इज 3 लाख. ऊपर भी यहाँ पे भी दे हैव गिवन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज 3 लाख. इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स, इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज हाउ मच? इनकम टैक्स गिवन इज 1 लाख. इनकम टैक्स क्या दिया है? इट इज 1 लाख. तो हमारा फाइनल आंसर इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स which is how much? 3 lakh minus 1 lakh, which is equal to 2 lakh. Now what is remaining? Only common size percentage is remaining. और common size percentage में हमेशा ध्यान में रखो, common size percentage जो है उसमें रेवेन्यू स्टेटमेंट में हम नेट सेल्स को मानते हैं 100. In common size revenue statement we consider the net sales as 100. नेट सेल्स को क्या मानते हैं? 100. क्योंकि देखो कॉमन साइज परसेंटेज में हम क्या मानते हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंसेस है वो सेल्स, नेट सेल्स का कितना परसेंटेज है, ग्रॉस सेल्स का नहीं. रिटर्न्स माइनस करने के बाद जो हमें सेल का अमाउंट मिलता है दैट इज नेट सेल का क्या परसेंटेज है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेल्स, what is the percentage of net, मतलब what is the percentage of other items with comparison to net sales. मतलब net sales को हमें क्या लेना है? net sales को हमें 100 लेना है. और हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है स्पेसिफिक एक्सपेंस रहने दो, इनकम रहने दो, डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज निकालना है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 lakhs. सो निकालो 3 lakhs डिवाइड बाय नेट सेल्स कितना है? 8 lakhs इनटू 100 करो, क्या आ रहा है? 3 lakhs डिवाइड बाय नेट सेल. सबको नेट सेल से डिवाइड करना है, सारे आइटम्स को नेट सेल से डिवाइड करके परसेंटेज निकालना है, इनटू 100 करना है. तो दिस यू विल गेट 37.5. डिड यू गेट? 3 lakh डिवाइड बाय 8 lakh इनटू 100 इज 37.5. सेम वे 5 lakh डिवाइड बाय 8 lakh इनटू 100 करो, यू विल गेट 62.5. 5 लाख हर एक को नेट सेल से डिवाइड करना है, हर एक को नेट सेल से डिवाइड करना है. फिर नेक्स्ट वन 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज यहाँ पे लोग ने ब्रैकेट में दिया है, हम भी ब्रैकेट में लिखेंगे. और यहाँ पे 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? इंटू 100 करो, हाउ मच आर यू गेटिंग? 25. मतलब हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है सेल्स का 25%, नेट सेल्स का 25%, नेट सेल का 25%. सेम वे अगेन 3 लाख को देखो कितना परसेंट आ रहे? 8 लाख का इट इज 37.5. और 1 लाख हमारा टैक्स जो है वो क्या परसेंटेज आ रहा है सेल्स का, नेट सेल्स का? इज इट कमिंग 12.5? इज इट कमिंग 12.5? एंड लास्ट वन 2 lakh, what is the percentage? 25. what is it? ऑलरेडी पहले भी हमने किया 2 lakh 100 that is net sales 8 lakh का 2 lakh divide by 8 lakh into 100 that is 25. with this sum is done. हमें क्या करना है? नेट सेल्स को 100 लेना है, बाकी सारे आइटम्स को नेट सेल्स से डिवाइड करके क्या परसेंटेज आता है वो लिखना है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल treat net sales as 100 and we will
find out all other items what percentage they are of net sales. So हर एक आइटम को नेट सेल से डिवाइड करके इंटू 100 करना है, जैसे हम रेवेन्यू रेशियोस में करते हैं, मैक्सिमम चीजें हम नेट सेल डिवाइड बाय 100 कर, जिसको भी हम अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. तो यहाँ इन द कॉमन साइज परसेंटेज हम जितने भी आइटम्स हैं सबको नेट सेल्स से डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे. नाउ वी विल कम टू द कॉमन साइज बैलेंस शीट. Now we will come to the common size balance sheet. So now let me write vertical. This is the last one. Vertical common size. Vertical common size balance sheet. Vertical common size balance sheet. Balance sheet. वर्टिकल कॉमन साइज बैलेंस शीट. तो इसका भी सेम वे कैसे फॉर्मेट बनाना है, पहला पर्टिकुलर, फिर दो कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम कॉमन साइज परसेंटेज का, सेम वे लाइक वी डिड लास्ट टाइम. तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, दो कॉलम है रुपीस का और लास्ट कॉलम है कॉमन साइज परसेंटेज. कॉमन साइज परसेंटेज. सो यहाँ पे हमें फॉर्मेट तो दिया है लेकिन वो 3 कॉलम में, तो इसके लिए हमें तो फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. सो फर्स्ट वन, सोर्सेस ऑफ फंड्स. सोर्सेस ऑफ फंड्स. सोर्सेस ऑफ फंड में हमारे पास है ए शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में हमारे पास है स्मॉल ए शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कितना दिया है, देखो शेयर कैपिटल दिया है हाउ मच, 2 lakhs. शेयर कैपिटल इज 2 lakhs and our then we have reserves and surplus. We have reserves. reserves कितना है, reserves 2 है. जनरल रिजर्व, what is the amount of general reserve? जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 50,000 एंड हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दिया है 1,50,000. दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 2 lakhs. एंड ये दो थर्ड कॉलम में तो लिख नहीं सकते बिकॉज थर्ड कॉलम में इट इज कॉमन साइज परसेंटेज, तो इधर ही नीचे लिखेंगे दिस इज व्हाट, दिस इज अवर शेयर होल्डर्स फंड. इसके बाद हमें लिखना है B1. बी में क्या है, लोन फंड है. लोन फंड का अमाउंट क्या है, लोन फंड का अमाउंट है डायरेक्टली दिया है. लोन फंड में डिबेंचर्स है, सो मैं इधर नीचे लिखती हूँ लोन फंड में देयर इज डिबेंचर्स एंड डिबेंचर्स का अमाउंट कितना दिया है, इट इज 3 lakh. डिबेंचर्स का अमाउंट दे हैव गिवन 3 lakhs. सो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, या तो इसको बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, शेयर होल्डर फंड है 4 लाख, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया शेयर होल्डर फंड है 4 लाख, डिबेंचर है 3 लाख. दोनों को ऐड करके हाउ मच इज द टोटल सोर्सेस, क्वेश्चन में दिया है टोटल सोर्सेस ऑफ फंड है 7 लाख. टोटल सोर्सेस ऑफ फंड इज 7 लाख, पर थर्ड कॉलम में दिया है, पर हमें तो यहाँ पे वी वांट इट इन द कॉमन साइज परसेंटेज, तो इसलिए हमने या तो हम 3 कॉलम करके 4th कॉलम कॉमन साइज परसेंटेज करेंगे तो भी चलेगा. 3 कॉलम हमने बनाया और 4th कॉलम को हमने कॉमन साइज परसेंटेज, तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे अच्छे से. तो इसके बाद नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में हमें क्या क्या दिया है, फिक्स एसेट है. फिक्स एसेट के बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट है.
इन्वेस्टमेंट के बाद क्या दिया है क्वेश्चन में? वर्किंग कैपिटल दिया है। क्या अमाउंट है, क्या अमाउंट है तीनों का? 4 लाख, 1 लाख एंड लास्ट वन इज 2 लाख। ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या तो बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ what is this all total coming to? Total coming is to 4 lakh, 1 lakh and 2 lakh. It is coming to 7 lakh. It is coming to 7 lakh. Now what is remaining? Only common size percentage is remaining. तो बैलेंस शीट में हम जैसे रेवेन्यू स्टेटमेंट में हमने सेल्स को 100 लिया, रेवेन्यू स्टेटमेंट में हमने सेल्स को 100 लिया, नेट सेल्स को 100 लिया। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको 100 लिया? नेट सेल को। सेम वे कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करना है? कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमें किसको 100 लेना है, किससे डिवाइड करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड से। किससे डिवाइड करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किधर है? कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 7 लाख, इसको 100 लेना है। क्या करना है? दोनों जगह इट इज सेम, असेट का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल सेम रहता है। तो व्हाट वी विल डू, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड या कैपिटल एम्प्लॉयड को 100 लेंगे, वी विल टेक इट एज 100 और ये सबका हम परसेंटेज निकालेंगे। सारे आइटम्स, वॉट एवर आइटम्स आर देयर इन द रेवेन्यू स्टेटमेंट, इन द बैलेंस शीट, सबका परसेंटेज निकालना होता है। तो अभी एक काम करो, शेयर कैपिटल का परसेंटेज निकालते हैं। 2 लाख डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100 करो। 2 लाख, शेयर कैपिटल इज 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100 करो। कितना आ रहा है? 28.57। डिड यू गेट 28.57? सो 28.57 आया। इसके बाद हमारे पास ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। तो जनरल रिजर्व का भी परसेंटेज निकालो। 50,000 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100, हाउ मच इट इज? 7.14, 7.14 एंड 1,50,000 PNL अकाउंट का भी परसेंटेज निकालो। 1,50,000 डिवाइड बाय 7 लाख into 100, what are you getting? 21.43 मिला, 21.43। अभी 2 लाख का परसेंटेज निकालो, 2 लाख का परसेंटेज निकालो, सेम आएगा 28.57, 28.57। अभी 4 लाख का परसेंटेज निकालो, 4 लाख डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100, what are you getting? 57.14। yes, अभी ये 3 लाख का परसेंटेज निकालो, ये 3 लाख का परसेंटेज निकालो, क्या है? 1 मिनट, ये थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ, इसका परसेंटेज निकालो, क्या है? क्या परसेंटेज है 3 लाख का? 3 लाख का परसेंटेज है 42.86। अभी सेम वे यहाँ पे भी 3 चीज है। 4 लाख डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है? 57.14, ऑलरेडी परसेंटेज निकाला है। अब 1 लाख डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100 करो, क्या आ रहा है? 14.29। लास्ट 2 लाख डिवाइड बाय 7 लाख करो, 28.57। already we have the answer. With this sum is done. I end the lecture here. Thank you so much.